عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے اس وقت کلبرگی سے کچھ ویڈیوز آ رہے ہیں درگاہ کے سامنے ہنگامہ مچانے کی ہندوتوا لوگوں کی جانب سے، تو وہیں پر کس طرح سے ایک پھر سے زہر اگلا ہے ایک سوامی نے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے مٹھ کا۔ بنگلور میں حجاب کے سلسلے میں ایک اسکول نے کس طرح سے اجازت دینے کی وجہ سے اسکول سرخیوں میں آیا۔ یوکرین میں کئی شہروں پر روسی بمباری میں شدت آئی ہے۔ ایٹمی جنگ کے خطرے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ فلسطین میں ظالم اسرائیلی فوجیوں نے 15 سالہ بچی کو جس طرح سے نوچا ہے، بھیڑیوں کی طرح، کتوں کی طرح، میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین گرامی، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، جن لوگوں کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدے پورا کریں، آپ کی سخت ضرورت ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں آپ کو کرناٹکا کے کلبرگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ تازہ ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ناظرین گرامی میں آپ کو بتا دوں کہ شموگا میں جو ہرشا کا قتل ہوا، اب وہ ہرشا واقعی میں ہندوتوا ذہنیت کا تھا یا نہیں تھا، یا وہ کوئی سیاسی قتل کیا گیا ہے کسی سیاسی لیڈر کے مفاد کے لیے انہی لوگوں کی جانب سے، یہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گی۔ اس لیے کہ جس طرح کے حقائق اس کے قتل میں سامنے نکل کر کے آ رہے ہیں، اس میں پوری طرح سے سیاسی دشمنی اور سیاسی مفاد جڑا ہوا ہے۔ لیکن ایسے معاملات کو بعض لوگ جو ہے پوری طرح سے ہوا دے کر کے کرناٹک کے ماحول میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی وجہ سے پرمود متعلق ہو یا بھی جو بھی نفرت کی جو بیان بازیاں کرتے ہیں، ان کو کلبرگی میں جانے سے، داخلے سے پابندی لگا دی گئی تھی، داخلے سے جو ہے روکا گیا تھا حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے۔ اسی کے چلتے آج 1 مارچ کو اعلان کیا گیا تھا بہت سارے لوگوں کے درمیان کہ وہ کلبرگی جائیں گے، وہاں جلوس نکالیں گے۔ اسی کے دوران یہاں کے مقامی MLA نے الند میں ایک درگاہ ہے، وہاں سے اپنی ریلی کو لے کر کے جانے کی کوشش کی، تو اس موقع پر جو ہے پوری طرح سے دونوں گروپ کے لوگ آمنے سامنے آ گئے اور سچویشن بڑی ٹائٹ نظر آنے لگی، اور دونوں قوموں کے لوگ جو ہے اس طرح ایک ساتھ ایک دوسرے کے سامنے آنے کی وجہ سے، اور آج شب برات کی وجہ سے درگاہوں میں الگ ہی قسم کا جو ہے ماحول بنا رہتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس وجہ سے ان تمام چیزوں کے پیش نظر پولیس کو بہت ہی مشکلات سے دونوں قوم کے لوگوں کو جو ہے کنٹرول کرنا پڑا۔ دیکھیے کس طرح شرارت ہو رہی ہے، اور یہاں کا مقامی MLA ہے جس کو قانون پر جو ہے پوری طرح سے قانون پر قابو رکھنا چاہیے تھا، جس کو پولیس انتظامیہ کا سپورٹ کرنا چاہیے، وہی جو ہے ہندوتوا دہشت گردوں کے ساتھ، ہندوتوا گروپ کے ساتھ مل کر کے جو ہے امن کے ماحول میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اسی درگاہ کے سامنے سے آ رہی ویڈیو ہے جو دونوں قوموں کے لوگ سامنے ہو چکے تھے۔ اب حالات کو پولیس پوری طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جگہ جگہ پولیس تعینات کیے گئے ہیں۔ ایک طرف یہ ماحول ہے، دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ یہ سوامی ہے جس کی ویڈیو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ لگاتار نفرت پھیلا رہا ہے ناظرین گرامی۔ یہ اپنے آپ کو مٹھ کا سوامی کہتا ہے، سدھا لنگا سوامی کے نام سے یہ مشہور ہے، جیورگی کا ہے۔ وہ جو ہے اس کو اجازت نہ دینے کی وجہ سے کلبرگی میں داخل ہونے یا کسی بھی طرح کے احتجاجی جلوس کے لیے اب براہ راست IPS آفیسرز کو، پولیس انتظامیہ کو، خود BJP پارٹی کے جو ہے وزیر داخلہ کو دھمکیاں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے گا کس طرح سے جو ہے وہ دوسروں کو کانگریس مائنڈڈ SP کہہ رہا ہے، پولیس والے کہہ رہا ہے۔ مسٹر آلوک کمار جو IPS ہیں اور ایکس IGP ہیں کلبرگی کے، اور SP رورل IPS ایشا پنت اور DC مسٹر یشونت گروراج،
ان تمام لوگوں کو اس نے جو ہے دھمکی دی ہے علند نامی شہر کلبرگی میں جو ہے داخل ہونے سے روکنے کی وجہ سے، اس لیے وہاں کا مقامی MLA نے وہ جلوس نکالا تھا۔ آپ اس کو آواز سے سنیں، اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ہرچا کے قتل کو لے کر کے یہ جو بھگوا لباس پہنے ہوئے گنڈے ہیں وہ لگاتار ماحول میں جو ہے پوری طرح سے نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ನೀಚ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ IGP ಹರಾಮ್ ಕೋರ್ ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅವಮಾನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾ? ಎದಕ್ಕಿದೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? ಬರೇ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು RPS ಹಾಕ್ರಿ, IPS ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ. ರಾಜಕೀಯ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಹೇತ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಈಶಾ ಬಂದ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈಂಡೆಡ್ SP ಅವಳು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಶಾ ಪಂತ್ ಅವರೇ, ಯಶವಂತ್ ಗುರುಕರ್ DC ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನ ನೀವು ಕಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಗುಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಲಾಟಿಗೆ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸರ ಮಾನಸಿಕತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರರ ಮಾನ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮಾನ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವ್ರಿ. 30 ಕೇಸ್ಗಳಿದಾವೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಹಾಕಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ, ಮೋದಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಗಂಟ ಹರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. नाज़रीन गिरामी, आज बहुत ही अफसोसनाक वीडियो आई। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो को तो चला नहीं सकते, लेकिन उसकी तस्वीरें देख कर के आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से जो है ये भेड़िए 15 साला बच्ची को ये इसराइली जालिम फ़ौजी अटैक कर रहे हैं। ये वीडियो है नाज़रीन गिरामी, हम इसको पूरा मत चलाएं वरना जो है इसको रोक देगा यूट्यूब वाला। इसको तस्वीरें दिखाएं। ये भेड़िए हैं, ये वो दरिंदे हैं जो एक 15 साला मासूम बच्ची को नोच रहे हैं। देखिए कि किस तरह से उसको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं ये भेड़ियों का झुंड। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस 15 साला बच्ची को हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि किस तरह लड़ रही है इन लोगों से, और ये एक बच्ची को काबू करने के लिए भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ रहे हैं। ये आज जालिम दहशतगर्द इसराइलियों की जानिब से आई हुई वीडियो है। इससे आप साफ़ और वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त फ़िलिस्तीन में किस तरह से जो है मासूम फ़िलिस्तीनियों को ये जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज जो है निशाना बना रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो है यूक्रेन में हमला एक तरफ हो रहा है, तो देखिए तस्वीर, जिसने दूसरों की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है वो रशिया के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहा है। ये देखिएगा, ख़ुद काबिज़ हैं, ख़ुद जालिम हैं, ख़ुद दहशतगर्द हैं, और ये रशिया के ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं कि वो यूक्रेन में जो कर रहा है गलत कर रहा है, इसलिए कि यूक्रेन के अंदर रशिया घुस चुका है। और ये जालिम जिनकी कोई ज़मीन नहीं, जिनकी कोई असलियत नहीं, यहाँ 15 साल 20 साल बच्चे। एक और वीडियो देखिए किस तरह बच्चों को मार रहे हैं, किस तरह भाग रहे हैं बच्चे ज़ख्मी होकर के। देख लीजिएगा वीडियो। ये आज की ताज़ा वीडियो है नाज़रीन गिरामी, जहाँ पर जालिम इसराइली फ़ौजियों ने बच्चियों पर जुल्म सितम किया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। और पूरी दुनिया, यूक्रेन में सिर्फ रशिया की जो है कुछ टैंकर्स घुस गए वहाँ पे तो हंगामा मचा रहे, और यहाँ देखिए पूरा मीडिया चूँकि यूक्रेन में है तो यहाँ जालिम इसराइली पूरी तरह से मुसलमानों पर जो है जुल्म व तशद्दुद करता हुआ नज़र आ रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो है उन पर जुल्म कर रहा है। और ये वीडियो आपको कोई दिखाएगा नहीं, इस पर कोई बहस करेगा नहीं, इसलिए कि जो है सबको जो है जो इंटरनेशनल कवानीन नज़र आते हैं वो सिर्फ यूक्रेन में और यूरोपियन ममालिक में कोई मुल्क का हमला करता है वहाँ आता है, लेकिन मुस्लिम ममालिक में, सीरिया में, लीबिया में, इराक़ में, अफ़गानिस्तान में, कश्मीर में, न जाने कितने ख़ित्तों में, न जाने अलग अलग पैमाने पर क्या क्या जुल्म हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, किसको पता है। और आप लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल कवानीन सामने नहीं आते। ये कहते हुए जो है इस वक्त सोशल मीडिया में तबसरे जा रहे हैं नाज़रीन गिरामी। वह नाज़रीन गिरामी, आइए मैं अब आपको ले चलूँ हैदराबाद। हिंदू त्योहारों के लिए मुबारकबादी देना या न देना ये अलग मसला है शरीयत के रूह से। अब ये है कि तेलंगाना में एक शख्स ने
जो फ्रूट बेचता है वो अपनी गाड़ी के ऊपर हैप्पी शिवरात्रि का एक फ्लेक्स लगा दिया, बोर्ड लगा दिया। तो मकामी शख्स ने जो है उसको हिंदू लोगों के सेंटिमेंट्स और एहसासात के साथ खिलवाड़ है कहते हुए उसको डांटने की कोशिश की और 1.5-2 घंटे तक ये बहस जारी रही, लेकिन उसने जो है उस बोर्ड को उतारने से राज़ी नहीं हुआ वो नौजवान, और कहता हुआ नज़र आया कि ये सेकुलर कंट्री है और मैं किसी को भी किसी भी त्यौहार की मुबारकबादी दे सकता हूँ। कुछ बेवकूफ़ लोग इस बात को समझते नहीं हैं। इस वजह से अब ये मामला चूँकि धर्म को लेकर के, हैप्पी शिवरात्रि को लेकर के था, तो लोग जमा हुए, लेकिन इस नौजवान वहाँ से जो है किसी भी तरह बहस करके उसको जो है वापस भेज दिया कि हम जो है भारत में रहते हैं और यहाँ पर आप अपना जबरन कोई भी चीज़ हम पर थोप नहीं सकते कहते उसको। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। थोड़ा आवाज़ के साथ सुने जो तेलंगाना से आ रही है, उसके बाद फिर आपके साथ आगे खबरों की जानी पड़ते हैं। हैप्पी शिवरात्रि హిందూ చంపుతాండే ఎవరైనా అప్పుడు నీకు అనవచ్చు ఎప్పుడన్నాడు ఎవరైనా నరికి చంపుతాను ఎవరు వయసు కాదన్నప్పుడు అప్పుడు తెలియలేదు అప్పుడు అన్నమన్నా అప్పుడు అనాలా హిందూ ముస్లిం ఎందుకు గొడవ వయసు సార్ నేను కలిసి వచ్చి బతుకుతాను यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैं आया था, पब्लिक बहुत ज्यादा दिख रही थी, क्या हुआ था? जो बोर्ड दिख रहा ऊपर जो बोर्ड में किसी मजहब को तकलीफ पहुंचाए, जैसे किसी इंसानियत को ठेस पहुंचाए, जैसे कोई वर्ड्स लिख रहे हैं। नहीं भाई, बोर्ड में तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा, खाली शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि दिख रहा। इसी बात के ऊपर यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे से बहस हो रही है कि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं कुर्ता पैजामा ताज पहना तो मुझे हक नहीं कि शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि किसी हिंदू भाई को विश करे। इसी बात पर बहस हो रही है। भाई गलत बात है ना, तो सब हम सेकुलर कंट्री में रहते, सब एक जैसे है ना भाई। बात तुम्हारे को मालूम, हमारे को मालूम, हम सेकुलर कंट्री में रहते, पर कुछ बेवकूफों के अभी भी ये बात समझ नहीं आती कि हिंदू मुस्लिम करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अच्छा, सही बात है भाई आपकी ये बात। मैं एक मुसलमान होके शिवरात्रि का एक फ्लेक्सी लगाया तो इससे एक हिंदू को आपत्ति हो रही, ये मैं पहली बार देखा। मैं मुसलमान हूँ, इससे उसको खुशी होना कि एक मुसलमान हैप्पी शिवरात्रि बोल के लगाया तो उसके मजहब के, मैं उसके मजहब के लोगों को विश कर रहा हूँ, तो इस बात से उसे खुशी होनी चाहिए, बल्कि उसे तकलीफ है कि एक मुसलमान उसे विश कर रहा है। सही बात है भाई, गलत बात है वो। भाई नाम क्या है अभी आपका? मेरा नाम सैयद असलम है, मैं निजामाबाद का रहने वाला हूँ। करीमनगर में कोर्ट के एरिया में कारोबार करता हूँ, 7 हिल्स पे। भाई कितने साल से कर रहे हैं यहाँ पे कारोबार? 5 साल से। 5 साल हो गए आपको? 5 साल से कारोबार यहाँ पर कर रहा हूँ। ये परमिशन दिलाने पे हमारे पास परमिशन लेके आने के बाद उसके बाद कारोबार करें, तो उस खुशी में हम लोग हैप्पी शिवरात्रि का बोर्ड लगाए कि ईद की परमिशन है हम लोग को, एक फेस्टिवल है हिंदुओं का, इस वजह से हम लोग को परमिशन मिली शिवरात्रि की वजह से। ये फ्लेक्सी का मतलब वही है। सही है, माशाल्लाह, सही बात है भाई आपकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ लोग हैं ऐसे गलत फहमी, तो अब मुझे गलत सोच वाले, वो क्या देकर गया कि ये फ्लेक्सी अभी निकाल दो या नहीं तो। नाज़रीन गिरामी, यूक्रेन में तालिबात बहुत परेशान हैं, जबकि इस दरमियान में खबर आ रही है कि रशिया के हमले में हिंदुस्तान के कर्नाटक रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालिब इल्म की मौत हो चुकी है, वो अटैक के जद में आ चुका है। तो वहीं पर बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ग्रामी अलग अलग तालिबात अलग अलग अंदाज में अपनी परेशानियां शेयर कर रही हैं। 3-4 दिनों से इनको पानी और खाना भी मैसर नहीं है, जहां अंडरग्राउंड जो सेफ्टी इलाके होते हैं वहाँ पर। और ये वीडियो में एक तालिबा जो है लगातार कह रही है कि किस तरह रोमानिया में और मुख्तलिफ इसमें मौजूद एम्बेसी के ज़िम्मेदारों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके सवाल का या उनको जवाब नहीं दे रहा है। जबकि यहाँ का गोदी मीडिया पूरी तरह से मोदी हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रहा है, वही तस्वीरें दिखा रहा है जो तस्वीरें लोगों को खुश कर सकती हैं। या फिर जो है ये एक फ़्लाइट वहाँ से आती है तो उसको बार बार सुबह से शाम तक दिखा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अंदरूनी सतह पर यूक्रेन में इस वक्त जो हज़ारों की तादाद में तालिबात या तलबा फंसे हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हर तरफ से अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा है, इसलिए कि वो जानता है कि दिखाने से जो है मोदी हुकूमत की पूरी तरह से जो है किरकिरी होगी और तनकीद होगी। मैं ये जो वीडियोस इस वक्त आए हैं मुख्तलिफ हवाला जात से, मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप इसमें देखें कि किस तरह बच्चियाँ इस वक्त और तालिबात जो मुख्तलिफ रियासतों से आकर के फंसी हुई हैं वो मुतालबात कर रहे हैं। आप जो है इसको सुने, फिर जो है आप अंदाज़ा लगाएँ कि हमारी हुकूमत किस कदर
निकम्मी हो चुकी है, इन तालिबात को बचाने में पूरी तरह से नाकाम होती नज़र आ रही है। अब खबर आई कर्नाटक के एक तालिब इल्म की मौत होने के बाद मज़ीद हंगामा मच सकता है। ज़ाहिर सी बात है कि नाज़रीन गिरामी इस वक्त यूक्रेन में रशिया मुसलसल बमबारी कर रहा है, यहाँ तक कि कोई भी सरकारी इमारत को वो नहीं छोड़ रहा। फोन करके भी नहीं पूछा कि बच्चा तुम लोग ठीक हो कि नहीं हो, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। इंडियन एम्बेसी हम लोग का कोई ख्याल रखिए, सीधे मुल्क बोल रहे तुम्हारी इंडियन एम्बेसी ने नहीं बुलाया तो हम क्या करें, कोई नोटिस नहीं है हमारे पास तुम्हारा। Vikram Kumar, we are calling them and he is continuously rejecting our calls, जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहाँ पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 kilometers from our current location. How are we as a student supposed to reach those borders? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी। गुड इवनिंग, मैं इंडियन स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम शाकंभरी शामलोंडे पाटिल है। आई एम फ्रॉम पेट्रोमोएला ब्लैक सी यूनिवर्सिटी। हम ये 3 दिन से हमले चल रहे हैं और हम स्टक है बंकर में फ्रॉम पास्ट 3 days। वी कांट इवन मूव। हमारे यहाँ पे फूड नहीं है, पानी नहीं है, ना ही हम घर वालों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इंडियन एम्बेसी जो हमें यहाँ से बॉर्डर तक लेके जाए। यू कैन सी अ सिचुएशन, you can look at it. नाज़रीन गिरामी, बीवी वो होती है जब शादी होती है तो वो पूरी तरह यकीन और एतमाद के साथ शौहर के घर आती है, लेकिन जहेज़ के नाम पर उसको इस कदर सताया जाए कि जीना ही दोबर हो जाए, उसका वीडियो बना करके वायरल भी कर दे तो आप क्या कहेंगे। कर्नाटक की उड़पी से आ रही ये वायरल वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर देगी। इसमें एक शख्स जिसकी बीवी हामिला है उसको न सिर्फ सिगरेट से जला रहा है बल्कि उसको जो है पूरी तरह से सताते हुए उसकी वीडियो बना करके उसके ससुराल भी भेज रहा है, उसके माँ बाप को भेज रहा है लड़की के कि वो किसी भी तरह से उसको जहेज़ दे, रुपया पैसा दे। ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हुई। अब खबर आ रही है कि उसको जो गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस हैवानियत की, इस बर्बरियत की, और किस कदर ये लोग पत्थर दिल होते हैं। ये वीडियो हम जलाने के आपको दिखा नहीं सकते, इसमें चेहरा भी हमने छुपा दिया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जो है हैवानियत की हदें पार करने वाली वीडियो है। बताया जा रहा है कि उड़पी ज़िले के कुंदापुर तालुके में बरेगट्टू नाम एक इलाका आता है, वहाँ का मुकीम है प्रदीप। अब उसको जो है पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। उसने सिगरेट के ज़रिए से अपनी बीवी को जहेज़ लाने के लिए बार बार जहेज़ नहीं लाने की वजह से उसकी वीडियो बना करके उसके वालिदैन को भेज करके उनको हरासा करके उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि इसने ये जो वीडियो में तो तफसीलात अगर देखा जाए कन्नड़ा में तो उसमें ये भी है कि लड़की ने अपने वालिदा को फ़ोन करके इसके बारे में शिकायत की थी और शिकायत करने की वजह से उसकी लड़की की यानी उसकी सास ने लड़के की उसको जो है फ़ोन के ज़रिए से धमकाया था, माफ़ी मंगवाने के लिए मजबूर करने के लिए उसके जिस्म को जो है वो जला रहा था। इस तरह की ख़बरें भी इसकी वीडियो से भी ये सारी तफसीलात हैं। लेकिन नाज़रीन गिरामी आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है किस कदर हैवानियत की इंतहा है इस वीडियो में। नाज़रीन गिरामी आइए मैं अब आपको ले चलूँ बेंगलुरु के बेलतंगड़ी में। आपको मालूम होना चाहिए कि ये बीजेपी के लीडरान अपने आदत से मजबूर हैं या अपने मुतासिब ज़हनियत से या फिर ऐसे ख्वाब देख रहे हैं शायद उनके कभी पूरे नहीं होंगे। अभी हाल ही में कर्नाटक के एक वज़ीर ने और एमएलए ने बयान जारी किया था कि किस तरह से वो लाल किले पर भगवा झंडा लहराना चाहते हैं। अब इस सिलसिले में एक और लीडर जिसका नाम है
हरीश पोंजा बेलतंगड़ी हलके से ये बीजेपी एमएलए है। तुलु ज़बान में बयान देते हुए इसने भी अपना इरादा जाहिर कर दिया, बल्कि चैलेंज किया कि वो लाल किले पर भगवा झंडा लहरा करके रहेंगे, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। शिमोगा में जो हर्षा का कत्ल हुआ, इस सिलसिले में हिंदू जन जागृति समिति की जानिब से एक एहतिजाजी इजलास मुनक़िद किया गया था। उसी में एक शख्स जो है केएस ईश्वरप्प का हवाला देते हुए कहा कि जब इस तरह का बयान दिया गया है कि लाल किले में भगवा झंडा लहराएंगे, तो कांग्रेस और दीगर लोगों ने उस पर जो है तनकीद की और अपनी तशवीश का इजहार किया। तो उन्होंने कहा कि जो है हम लाल किले में उनके बयान के मुताबिक भगवा झंडा लहराने के लिए तैयार हैं और लहरा करके रहेंगे, किसी को रोकना हो तो रोक लें, ये कहते हुए जो है उसने धमकी आमेज़ लहजे में तुलु ज़बान में ये बयान भी जारी करने की कोशिश की है। तो नाज़रीन गिरामी, लगातार नफ़रतें जारी हैं और पूरी दुनिया में नफ़रतें जारी हैं, और बीजेपी लीडरान तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किस हद तक इस वक्त जा रहे हैं। यूपी के इलेक्शंस में क्या कुछ हो रहा है, और फिर जहाँ जहाँ भी बीजेपी की हुकूमतें हैं वहाँ क्या कुछ किस तरह के बयानात आ रहे हैं, सारी चीज़ें आप सामने रख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये साफ़ और वाज़ेह चेहरा भी मुस्तक़बिल में भारत का किस तरह का होगा उसको भी आप देख सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, बहुत सारे स्कूलों ने हिजाब पर पाबंदी लगा दी और आप जानते हैं कि क्या कुछ हुआ, लेकिन इसमें ऐसे बहुत सारी स्कूल्स हैं जिन स्कूलों में लगातार जो है बच्चियों को और तालिबात को पूरी तरह हिजाब के साथ जो है वो तालीम हासिल करने और फिर एग्ज़ाम्स वगैरह देने की इजाज़त दे रहे हैं। इस सिलसिले में बेंगलुरु के गुडविल क्रिश्चियन स्कूल ने जो है पूरी तरह से तालिबात को हिजाब पहनने की इजाज़त दी, उनको एग्ज़ाम्स में बैठने की भी जो है इजाज़त दी। इस सिलसिले में डॉक्टर सुजाता जो इसकी प्रिंसिपल है, उन्होंने भी बात करते हुए कहा कि हमने किसी भी तरह की जो है यहाँ पर हिजाब पर पाबंदी नहीं लगाई है और उनको पूरी तरह से आज़ादी है। वो हर धर्म का आदमी जो है अपने अपने एतबार से प्रैक्टिस करता है, इसकी वजह से स्कूल इस वक्त जो है पूरी तरह सुर्खियों में आया हुआ है। नाज़रीन गिरामी, कश्मीर में अनंतनाग के जच्चा बच्चा अस्पताल में सिलेंडर का धमाका होने से 10 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। बहुत अफसोसनाक खबर आ रही है। जनूबी कश्मीर की ज़िला अनंतनाग के मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर अस्पताल में मंगल के रोज़ गैस सिलेंडर फटने से कम 10 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि अनंतनाग के मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर अस्पताल के टिकट सेंटर में मंगल के रोज़ मुमकिना तौर पर हीटिंग गैस में लीकेज की वजह से यह धमाका हुआ है। इस वाक़े के नतीजे में 10 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, इसमें 2 बच्चे शामिल हैं, 5 तीमारदार जो ज़ख्मियों की तीमारदार कर रहे थे, जो बीमारों की तीमारदारी के लिए आए थे, और अस्पताल के 3 मुलाजिम भी शामिल हैं। ये खबर आ रही है। इस तरह मुश्किलात पर मुश्किलात आई हुई हैं इस हॉस्पिटल में गैस सिलेंडर के फटने की वजह से। नाज़रीन गिरामी, उधर यूक्रेन कई शहरों पर रूसी बमबारी में शिद्दत आ गई है। लगातार हमले हो रहे हैं, हर तरफ तबाही मचा रहा है इस वक्त यूक्रेन में रशिया, और मुज़ाकरात किसी भी तरह से जो है वो काम आते नज़र नहीं आ रहे हैं, कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। यूक्रेनी हुक्काम ने बताया कि रूसी तोपखानों ने पीर को खार्किव के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की, जिसमें कम से कम 11 अफराद हलाक हुए। इलाकाई इंतज़ामिया के सरबराह ने कहा कि रूसी तोपखाने ने रिहायशी अजला पर गोलाबारी की। हालांकि वहाँ यूक्रेन की फ़ौज की कोई पोजीशन या स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। उन्होंने बताया कि ये सब दिन में उस वक्त हुआ जब लोग अद्वियात, सब्ज़ी और पीने का पानी लेने बाहर गए थे। तो नाज़रीन गिरामी, मतलब ये है कि जो इस वक्त रशिया पूरी तरह से आवाम को भी निशाना बना रहा है। जहाँ फ़ौजी होते हैं वहाँ पर निशाना बनाने के लिए इसे जंगी जुर्म करार नहीं दिया जाता, इसलिए कि वो आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन अगर आम आवाम को या अवामी अमला को आप नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो फिर आप जंगी जराइम में मुलव्वस पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ रशिया पूरी तरह से यूक्रेन में जंगी जराइम में मुलव्वस हो रहा है। इस बात को लेकर के जो है ख़बरें मुख्तलिफ अंदाज में सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है मौलवियों के दरबार में नाक रगड़ने वाले भगवा की कीमत नहीं समझ पाएंगे कहते हुए डिम्पल यादव पर सीएम योगी का जवाबी हमला सुर्खी बना हुआ है। नाज़रीन गिरामी, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, लीडरों की बयानबाजी भी तेज़ होने लगी है। अब वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने साबिक़ एमपी और अखिलेश यादव की अहलिया डिम्पल यादव के बयान पर जवाबी हमला कर दिया है और कहा कि जो लोग मौलवियों के दरबार में नाक रगड़ते हैं वो भगवा की अहमियत को नहीं समझ पाएंगे। गौरतलब बात यह है कि साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव की अहलिया डिम्पल यादव ने एक इंतखाबी रैली के दौरान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के लिबास पर तंज़ करते हुए कहा कि वज़ीर आला के लिबास पर कहा था कि लोहे में जंग लगने के बाद जो रंग आता है वैसा ही वज़ीर आला के कपड़ों का रंग होता है। एक न्यूज़ चैनल्स के इंटरव्यू के दौरान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने डिम्पल यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भगवा भारत के सनातन धर्म की रिवायत और तवानी की अलामत है।
भारत की रूहानी शऊर की अलामत है। अगर उन्हें उसके बारे में जानकारी होती तो शायद भारत की संत रिवायत के तय एहतराम का जज्बा पैदा होता। उन्होंने ये भी कहा कि मौलवियों के दरबार में नाक रगड़ने वाले लोग उसकी कीमत नहीं समझ पाएंगे, इस पर सकाफत और सोहबत का असर पड़ता है। जया बच्चन पर हमला बोलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि उनके लिए अपना एक ही परिवार है, इसलिए वो नाकाम हुए हैं। मेरे लिए 25 करोड़ की आबादी ही मेरा परिवार है, इसलिए परिवारवादी और नस्ल परस्त लोगों से कोई उम्मीद करना ही नहीं चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है मौलवियों के दरबार में नाक रगड़ने की बात करने के बाद इस वक्त जो है किस तरह से नफ़रत है इसकी जहनीत में योगी की, वो पूरी बात सामने आ रही है। और ये किस तरह लोगों को जो है भड़काने के लिए किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि जो है उनके बयान का जवाब किसी और अंदाज में देना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी मुसलमानों को और मौलवियों को खींच लाए योगी ताकि पूरी तरह से माहौल को मुतासिब बनाया जाए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, कुछ खबरें रह गई, मैं इंशाल्लाह फिर आप उनके सामने पेश करूँगा। यहाँ वक्त हो चला है, मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।